हाँ, Doll's क्या पढ़ाने House, वाले हैं? Doll's House by Catherine Mansfield. Start हो चुका था last class में ना? Can anyone tell me what is the story about? Upper class, the rich and the poor class. So there are two families, Burnell family and Kelvy's family. Did you write the characters? Mrs. Hay. So who presented the Doll's House? Mrs. Hay. अच्छा आप बताइए डॉल्स हाउस जो है वो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. द रिच डेकोरेशन किस चीज को बता रहा है? अपर क्लास. एंड द सिंपल लैम्प लोअर क्लास. मैम डिस्क्रिमिनेशन बता रहा है. Discrimination of the upper and the lower class, the working class and the upper class. So the doll's house is a gift from Mrs. Hay. Who is Mrs. Hay? Aunt very. फैमिली फ्रेंड. Mrs. Hay Aunt Beryl है. Family friend. Why did she give the doll's house to the children? Because she has visited his friend's house. Because Mrs. Hay had come to live with the family, and when she went away, she sent them a gift. How many children were there? How many girls were there in the family? 3 girls were there. What was the name of the eldest? Isabel. Youngest? Kezia. What did the no? जो youngest and oldest के बीच में It will come. So eldest and जो middle वाली sister है, they always talked about the doll's house, the rich decoration, the heavy curtain, the bed, the sofa. But Kezia only talked about the simple lamp. And so, what does this mean? इसका क्या मतलब होता है? कि ये दोनों बड़ी लड़कियां थी, वो प्रभावित थी अपने फैमिली के कल्चर से, और जो सबसे छोटी थी उसको Recording in progress. अरे सुजीत कौन है यार? म्यूट करो ना अपने आप को. and Kezia was always talking about the simple lamp. So much so, इतना कि जब भी whenever they were describing the doll's house in school, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती थी, तो हमेशा लोग सिंपल लैम्प को भूल जाती थी. तो केजिया उनको याद दिलाती थी, इजाबेल यू फॉरगॉट द लैम्प. और फिर वो लोग शुरू हो जाते थे डॉल्स हाउस को डिस्क्राइब करना. इतना तक आप लोग जाना है ना? हमें लॉगिन क्यों नहीं कर लेते हैं?
So now what happened? अभी stuck हुए. This is not moving. कुछ न कुछ disturbance. Now can you see the screen? Isabel, the eldest, and Kezia, the youngest of the Brunel family with Aunt Peril. This was done, no? Okay. There you see Kezia, she is all the time admiring the simple lamp and looking at the doll's house and always admiring the lamp inside. What is the theme of the story? Did you write this? Yes, ma'am. The gap between the Rich rich and the poor. And what else? Innocence. Innocence of a child which is being poisoned by the adult. And a child is very innocent. She sees everybody as human being, whether they are rich or poor. Okay. Symbolism. Did you write this? Yes, ma'am. What is the symbolism? It's all about the doll's house, which is the complete society. The heavy decoration is the upper class, and the lamp is the working class. And there is a lot of discrimination between the upper class and the lower class. Short story characteristics. What are the characteristics? The characters are the Burnell family, the Burnell sisters, the little Kelvies, the mother and aunt and school girls. आप लोग लिख चुके हैं ये सब? Yes, ma'am. Okay. Action क्या है? What is the action? The girls run to see the doll's house. ये first action है. जब doll's house आता है तो they run to see the doll's house. Conflict क्या है? What is the conflict? बताइए, हो चुका था, बताइए. क्या तनाव क्या है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? एमसीक्यू में आपको ये सब जानना पड़ेगा ना, इसीलिए आपको आंसर करिए, इंटरैक्ट कीजिए. जितनी आप बात कीजिएगा, जितनी डिस्कस कीजिएगा, उतना आप क्वेश्चन समझिएगा. व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट? लिखा है ना, तो फिर बताइए. पढ़िए ना, लिखा हुआ तो है. क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है? We are not invited. Why they are not invited? Which comes from third class. Kelvies are not allowed to see the doll's house because they belong to the lower class. Interact कीजिए. जब तक नहीं interact कीजिएगा ना, तो फिर you will not be able to answer any MCQ. And जो Kezia है, who is Kezia? The youngest daughter of the Burnell family.
she becomes friendly with the poor children. वो केल्विस के चिल्ड्रन के लिए वो क्या हो गई थी, वो she is friendly with the children. Amit Kumar, what do you want to ask? पहले कैमरा ऑन करिए तो पूछिए क्या पूछना है. कुछ नहीं पूछना है. Do not waste time. Hello. मैम आप म्यूट कर रहे हैं. आपने म्यूट क्या करा? म्यूट तो नहीं उन लोगों को. ये लोग इतना हल्ला गुल्ला करते हैं क्या करते? वेटिंग में मैम. हेलो मैम, हाँ विष्णु वेटिंग में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. बहुत सारे लोग वेटिंग में हैं. तुमको यही बोलना था क्या? सिखाता है क्लास में. तो वो विष्णु है. तो केजिया जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसको कुछ असर नहीं होता. शी इज नॉट पॉइजन्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर मदर एंड हर आंट. एंड जब सारे बच्चों ने घर देख लिया होता है क्या इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया था? व्हाट वर द इंस्ट्रक्शंस कि 2-3 दिन तक घर बाहर क्यों रखा रहेगा? Because of the smell of the paint which Aunt Beryl did not like. So she said, let it be outside in the backyard or courtyard, and then we will bring it back after the smell goes away. So what was the suggestion by the children? What did they want? What was the request? That they can bring their friends to see doll house. They asked whether can they bring their friends to see the doll's house, because इतना ज़्यादा चर्चा हो गया था, so much talking about the doll's house, so that excited the children and they wanted to see the doll's house. So what was the instruction? कि सारे एक साथ आएंगे? नहीं. Only two at a They will come 2 at a time and they will not stay till tea time and they will not enter the house. मतलब they will come, they will see the doll's house and they will leave. तो जब सारे दोस्तों ने देख लिया था तो केजिया ने क्या रिक्वेस्ट किया था? कहानी यहाँ तक नहीं पहुंची. ठीक है. तो जब सारे बच्चों ने देख लिया था तो छोटी वाली जो लड़की है, जो सिस्टर है केजिया, वो जाके मदर से पूछती है कि मदर कैन आई ब्रिंग द केल्वीज इनसाइड टू सी द डॉल्स हाउस. केल्वीज कौन है? वो 2 बच्चे जो वर्किंग क्लास के हैं, जो इसके घर में जो कपड़ा धुलती थी उसकी बेटी है वो. तो केजिया बोलती है क्या मैं उनको लाऊं? उसकी मदर ने कहा था कि बिल्कुल नहीं, सडनली नॉट. बावजूद इसके वो क्या करती है, उसको दोस्त बना ली थी वो. केजिया बिफ्रेंड्स केल्वीज, मतलब कि द पुअर चिल्ड्रन की वो दोस्त बन चुकी थी और वो चाहती थी कि वो भी डॉल्स हाउस देखे. तो वो क्या करती है, दोपहर में वो गेट के पास खड़ी होती है और वेट करती है कि जब केल्वीज या पुअर चिल्ड्रन जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो हम उनको अंदर बुला करके डॉल्स हाउस दिखाएंगे. ये इसकी मंशा थी केजिया की कि आई विल शो देम द डॉल्स हाउस. मेरी माँ कुछ कहे, मेरी आंट कुछ कहे, मेरी सिस्टर्स कुछ कहे, लेकिन हमको तो उनको डॉल्स हाउस दिखाना है. तो वो दोपहर में, आफ्टरनून में वो अपने गेट के पास खड़ी थी कि जैसे ही वो गुजरेंगे उस रोड से तो मैं उनको बुला लूंगी. और ये देखिए केल्वीज पुअर चिल्ड्रन है, मतलब इसकी माँ काम करती है ब्रुनल फैमिली के घर में, कपड़े धुलती है. तो जब ये दोनों सेम स्कूल में जाते हैं, ये सारे सेम स्कूल में जाते हैं, तो ये बच्चे बिल्कुल अलग अलग रहते हैं. किसी से बात भी नहीं करते, कोई उनसे भी नहीं बात करता है.
तो इसको देख के मजाक उड़ाती है केजिया, केजिया नहीं उसकी बड़ी बहन, कि ये जो कैप जो पहनी है वो मेरी मदर का है। तो कैसे हम लोग दे देते हैं अपने कपड़े सर्वेंट्स को, तो बोलती कैप जो पहनती है वो मेरी मदर का है, और जो ड्रेस पहन रखा है वो मेरे घर के पुराने पर्दे से बना हुआ कपड़ा है, ड्रेस है। और तरह तरह की बात वो करते हैं, वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और ये दोनों बिल्कुल अलग 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 रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। और जो छोटी वाली जो लड़की है वो हमेशा बड़ी बहन का कपड़ा पकड़ी रहती है और चलती रहती है उसके पीछे पीछे। तो जैसे ही ये गुजरती है वहां से तो केजिया उनको पुकारती है, और पहले तो जवाब देती नहीं है। केल्वीज बड़ी जो सिस्टर है उसका वो जवाब नहीं देती है, लेकिन बार बार ये पुकारती है उसको, तो उसको डांट देती है कि तुमको तो बात नहीं करना मुझसे, हम लोगों से बात मत करो, तुमको मना किया गया है ना। तो पूछती है कि तुमको डॉल्स हाउस नहीं देखना क्या, डोंट यू वांट टू सी द डॉल्स हाउस। तो छोटी वाली लड़की कुछ नहीं बोलती है, बस उसका कपड़ा पकड़ के खींचती है कि चलो ना देखते हैं हम लोग। और ये उन लोगों को अंदर ले आती है। जब अंदर ले आती है तो जो छोटी वाली जो लड़की जो उसका नाम एल्सा है, वो चुपचाप से देखती है जो डॉल्स हाउस का जो विंडो रहता है उससे वो झांक करके देखती है कि अंदर में क्या क्या चीजें हैं। और तभी आंट बेरिल की आवाज आती है, गुस्से में वो पुकारती है केजिया को, उसको डांट के अंदर भेजती है, और इन लोगों को डांट करके क्या करती है, बाहर कर देती है। और ये फिर डरते 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 इतना ज्यादा डर जाते हैं ये दोनों बच्चे कि दौड़ना शुरू करते हैं, और जब तक थक नहीं जाते हैं तो दौड़ते ही रहते हैं। रिपीटिशंस। और ये दोनों बच्चे जो हैं उनके पास टिफिन भी नहीं हुआ करता था, बार बार वो रिपीटेडली कागज में कुछ टिफिन लाते थे अपना, कुछ खाने पीने की चीजें, और एक ही चीज को बार बार लाते थे, और अपने में आपस में बात करते रहते थे, ऑलवेज बाय देमसेल्व्स, मतलब कि हमेशा दोनों अकेले ही रहते थे और हमेशा सुनते रहते थे कि कौन क्या बात कर रहा है। जैसे डॉल्स हाउस के बारे में जब बात हो रही थी तो ये लोग भी सुन रहे थे कि क्या बात हो रही है। और काफी इन लोग का मजाक भी उड़ता था बहुत। और देखिए बर्नल चिल्ड्रन विद द अपर क्लास, स्कूल में जब मिलते थे तो सब उनका हंसी मजाक उड़ाते थे, बोलते थे कि तुम भी क्या बड़ी होकर के नौकरानी बनोगी क्या, तुम्हारी माँ तो मेरे घर में नौकरानी बनती, क्या तुम लोग भी नौकरानी बनोगी बड़ी होकर के, क्यों पढ़ रही हो तुम लोग, पढ़ के भी तो नौकरी करनी है तुमको। तो इस तरह की बातें होती थी और सब मजाक उड़ाते थे, सब हंसते थे उनको देख करके। कोई कैप पर हंस रहा है, कोई उसके ड्रेस पे हंस रहा है। और टीचर्स भी जो थे वहां पे, स्कूल के टीचर्स भी थे, वो भी इन लोग के साथ अलग ट्रीटमेंट करते थे। रिच लोगों के साथ अलग ट्रीटमेंट और केल्वीज के बच्चों के साथ अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता था। तो सब बच्चे टीचर्स को स्कूल लेके जाते हैं, आप लोग भी जाते देते होंगे, स्कूल में देते थे ना, नहीं देते थे। लड़कियों की आदत है, टीचर्स को खुश करने के लिए गुलाब ले जाएंगी, कुछ करेंगी। नहीं नहीं दिया कभी दिए। तो घर का गार्डन का नया नया अभी फूल है तो उसको तोड़ के छुपा के जाते के देने के लिए, ताकि टीचर खुश हो जाएंगे हमसे। तो ये लोग भी, केल्वीज के बच्चे भी जाके देते थे, कहीं से तोड़ ताड़ करके, कहीं से जंगली फूल भी उनके पास तो गार्डन होता नहीं था, तो कहीं से भी वो जंगली फूल वो लेकर के चले जाते थे, और टीचर देख के बोलते थे चलो वहां पर रख दो, मतलब वो एक्सेप्ट भी नहीं करते थे। तो इस तरह से इन लोग की बहुत ही बेइज्जती होती थी स्कूल में, और परेशान थे वो लोग। इजाबेल एल्डर ब्रनल विथ हर सिस्टर। और ये उनकी शक्ल देखिए और इनकी शक्ल देख के जमीन आसमान का तरह किस तरह से।
और ये है आंट बेरिल, जो कि लोअर क्लास के लोगों से बात भी नहीं करते हैं, और एक मिडिल क्लास का लड़का इनसे बात करना चाहता है, लेकिन उसको वो डांट देती है, उससे वो बिल्कुल उसको लिफ्ट ही नहीं देती है। तो वो लड़का इतना नाराज हो जाता है कि बोलता है कि इफ यू विल नॉट कम टू मीट मी, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। जिस पर ये इतनी नाराज हो जाती है, जिस दिन जो केजिया को डांटी थी, जो बच्चों को निकाली थी, उसी दिन की बात है। इसीलिए वो इसका गुस्सा इतना फूटा था केजिया पर और उन बच्चों पर। नाराज वो किसी और वजह से भी थी, लेकिन उसका गुस्सा पूरा उतरा केजिया पर और बच्चों पे। ये मदर मिसेस ब्रुनेल, जो कि आप देख ही रहे हैं, हाई क्लास के लोगों की शक्ल, उनकी वेशभूषा बिल्कुल अलग होती। एट अ ग्लांस, शॉर्ट स्टोरी स्ट्रक्चर। राइजिंग एक्शन क्या होता है? मतलब सब कुछ एक समान तौर से चल रहा है, सब एक नजर में, एक झलक में स्ट्रक्चर, स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का स्ट्रक्चर। तो राइजिंग एक्शन क्या है? It takes place when Kezia invites the little Kelvi sister to see the doll's house. कुछ हलचल होता है, कुछ एक्शन होता है। कब? जब केजिया इनवाइट करती है लिटिल केल्वी सिस्टर्स को डॉल्स हाउस देखने के लिए। क्लाइमैक्स क्या होता है? स्टोरी का क्लाइमैक्स होता है when finally the little Kelvi sister sees the doll's house. कि वो बच्चे डॉल्स हाउस देखते हैं और तुरंत ही उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द बैकयार्ड बाय आंट बेरिल, और उन लोगों को निकाल दिया जाता है वहां के बैकयार्ड से। तो राइजिंग एक्शन क्या है? उनको बुलाया जाता है। क्लाइमैक्स क्या होता है? बच्चों ने लैम्प देखा और उनको वहां से निकाल दिया गया। यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। The rising action takes place when the children are invited to see the doll's house. Children Kezia invite करती है. Kezia is one person who is inviting. And what is the climax? जब फाइनली वो बच्चे देख लेते हैं और उनको वहां से निकाल दिया जाता है। और फॉलिंग एक्शन क्या होता है? फॉलिंग एक्शन तब होता है जब बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ट्रिमेंडस फ्राइट, बहुत ज्यादा डर के वो इतने तेज दौड़ते हैं, और जब तक कि थक नहीं जाते हैं दौड़ते रहते हैं, फिर स्टॉप करके रेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा। Ma'am, what is the meaning of climax? The rising point, the height of the story. तो हर स्टोरी का तो मैम क्लाइमेक्स नहीं होता होगा? हर का होता है क्लाइमेक्स, हर एक स्टोरी का क्लाइमेक्स होता है, द मेन पॉइंट होता है जहाँ पर एक्शंस होता है। और मैम कॉन्फ्लिक्ट मींस? तनाव, टेंशन, मतभेद। इसी समय ये बंद हो जाएगा। ठीक करते हैं, इसका फिक्स कर देना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट, टसल, मतभेद, कुछ आप अग्री नहीं करते हैं,
और रेजोल्यूशन क्या है? निष्कर्ष क्या हुआ पूरे कहानी का? The little Kelvys were satisfied to see the doll's house. वो लोग satisfied हो गए देख करके, चाहे लाख कुछ भी हो, कितनी डांट भी सुनी या बेइज्जती भी कितनी हुई, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कम से कम देख लिया डॉल्स हाउस। एंड एल्सा, जो सबसे छोटी वाली सिस्टर का नाम एल्सा था, जो झांक के देख रही थी, वो एल्सा वाज हैप्पी मेनली बिकॉज शी सॉ द लिटिल लैम्प। यहाँ पर समानता क्या है? कीजिया को भी लिटिल लैम्प पसंद था, छोटा वाला सिंपल लैम्प, और एक गरीब घर की लड़की को भी क्या था पसंद? सेम लैम्प पसंद था उसको। और चाहे लाख बेइज्जती हुई और ये लोग दौड़ते दौड़ते कहीं पर बैठ गए, तो बड़ी बहन उसके सिर पे हाथ रखती है और ये उसकी तरफ घूम के मुस्कुराती है और बोलती है कि आई हैव सीन द लैम्प, कि मैंने वो लैम्प, तो चलो कुछ भी हो, हमने वो लैम्प तो देख लिया। शॉर्ट स्टोरी सिंबलिज्म क्या है? The main symbol is at the same time the title and the subject of the short story, that is the doll's house. Doll's house जो symbolism है, और doll's house represent करता है सोसाइटी को। हाँ, fear. Fright मतलब fear, डर। There are many aspects revolving around this symbol or subject, as if the doll's house was a gravitational point where everything in the short story happens. जिस तरह से शॉर्ट स्टोरी क्या हैपन हो, कहाँ हो रहा है? सोसाइटी में हो रहा है। और डॉल्स हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोसाइटी को। तो सारा चीज सिंबलिज्म क्या है? सारा कुछ तो इर्द गिर्द डॉल्स हाउस में हो रहा है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, द सिमिलैरिटी बिटवीन द डिफरेंसेस बिटवीन अपर एंड लोअर। डिफरेंसेस क्या है? उनकी सोच, उनकी समझ, उनका बिहेवियर। सिमिलैरिटी क्या है? सिंपल लैम्प है, जो कि एक कॉमन चीज हो गया, जो कि केजिया को भी पसंद आ गया और एल्सा को भी समझ में आ गया। लैम्प दैट स्पीक्स ऑफ होप। तो ये क्या बात करते हैं? लाइट ऐसे भी, लैम्प कोई भी जलता है, लाइट जलता है, तो लाइट को देख के क्या आता है मन में? आता है एक होप आता है। लाइट का मतलब ही ये होप, इट इज ब्राइटनेस इन एनी हाउस। हाँ, यहाँ लाइन वन कट जाए, अंधेरा हो जाए, तो फिर कोई एक्शन, नो एक्शन। लाइट है तो एक्शन है। तो लोअर क्लास है तो एक्शन आपके घर में है, नहीं तो अगर कोई आपको कॉफी नहीं पिलाएगा कोई, सुबह शाम हम लोग बैठे रहेंगे, कुछ होगा नहीं, सफाई नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा, तो उनके बिना हम लोग को हम लोग की जिंदगी कैसी हो जाएगी? वो घर बना दे तब हम लोग रह पाते हैं। घर तो हम लोग नहीं बनाएंगे जाकर, घर कौन बनाएगा? वही लोग बनाएंगे। जो बेड पे आप सोते हैं वो आप तो नहीं बनाएंगे, कौन बनाएगा? वर्किंग क्लास बनाएंगे। तो जिस चेयर पे आप बैठे हो आप तो नहीं बनाओगे। तो दे आर द होप ऑफ एनी सोसाइटी। सो इसको, इसी चीज को सामने ला के रखना चाह रही है कैथरीन मैन्सफील्ड, बिकॉज the lower class, the working class is like a hope, is like a lamp, without which our life will be impossible. Younger sister, Kelvys and the school teacher. और जो स्कूल टीचर थी हमेशा इन लोगों को डांटा करती थी, जैसे मैंने बताया, तो they had a different voice for the Kelvys children. और ये क्या? The poor little sister Elsa, उसके बारे में बात कही गई है। Shouts and joy, चिल्लाती है खूब खुश होकर के कि मैंने लैम्प को देख लिया है। I saw the lamp. अच्छा, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, टाइम लगता है। सुनी सर आ गए यहाँ पे।